Okay, so now we are going to have another type of join, that is outer join. We already have discussed about the inner join, and we have discussed about the equi-join, theta join, and the natural join. We have discussed that cross join is the same as Cartesian product, and now we are coming to the outer join. Outer join is basically divided into two types, that are left outer join and right outer join. So let's come to the slides and discuss what is the left outer join and right outer join. Okay, so if you just go to the same example that we studied first, that is the customer and the agent. In the customer table we have these attributes, and the agent table we have these attributes. We'll consider the same example for the left outer join and the right outer join. Left outer join में क्या होता है? Left outer join takes all of the records from the left table, even if they do not have a match in the right table. I repeat, left outer join brings all of the records from the right table, even if it doesn't have any match record in the राइट टेबल. ठीक है जी. लेफ्ट टेबल से आपका जो लेफ्ट आउटर जॉइन है, लेफ्ट टेबल से फॉर एग्जांपल आपका लेफ्ट टेबल कस्टमर से तमाम रिकॉर्ड्स लेके आएगा, इवन इफ दे डू नॉट हैव मैचिंग कीज इन द राइट टेबल. फॉर एग्जांपल अगर हम इस टेबल में देखें, 231 इज प्रेजेंट हियर, यस. 125 इज प्रेजेंट हियर, यस. 167, यस वी हैव. 125, यस. 421, नो. 421 एक ऐसा रिकॉर्ड है इस टेबल के अंदर जिसकी मैचिंग की इसमें मौजूद नहीं है. अब अगर हम इक्वी जॉइन से काम करेंगे तो इक्वी जॉइन इस रिकॉर्ड को लेके ही नहीं आएगा. इक्वी जॉइन विल ओनली yield those records which have the same keys. If the keys are matched, then it will take all of the rows where the keys were matched. ठीक है जी. बट आउटर जॉइन में ये होता है कि वो अनमैच रिकॉर्ड्स भी लेके आ रहा होता है. तो लेफ्ट आउटर जॉइन क्या करता है? लेफ्ट आउटर जॉइन विल ब्रिंग ऑल ऑफ द रिकॉर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टेबल, इवन इफ दे डू नॉट हैव एनी मैच इन द राइट टेबल. तो उसका मतलब क्या है कि 421 वाली रॉ है ना, रिजल्ट में ये भी आएगी, बट इसके अगेंस्ट कोई रिकॉर्ड ही नहीं है. तो क्या होगा? तो ये चीज़ ब्लैंक आएगी. हम चलते हैं अपनी स्लाइड पे, लाइक दिस वन. 421 जो हमारा है टेबल, इस कस्टमर टेबल से तमाम रिकॉर्ड लेके आ गए हैं. जितने रिकॉर्ड थे तमाम रिकॉर्ड लेके आ गए, और इस टेबल में इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, तो ये इसको नल छोड़ देगा. तो लेफ्ट आउटर जॉइन में ऐसा ही होगा, और इसी तरह से राइट आउटर जॉइन में भी ऐसा ही होगा. इसको जरा अगर हम रीड कर लें, एन आउटर जॉइन इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ एन इनर जॉइन. द आउटर जॉइन स्टिल रिटर्न्स ऑल ऑफ द मैच रिकॉर्ड्स that the inner join returns, plus it returns the unmatched record. ठीक है जी. मैच रिकॉर्ड के साथ साथ इट ऑल्सो रिटर्न्स ऑल ऑफ द अनमैच्ड रिकॉर्ड्स. ठीक है जी. अच्छा, a left outer join yields all the rows in the customer table, including those that do not have a matching value in the agent table. It will bring all of the records from the customer table, even if they do not have any match in the agent table. ठीक है जी. अच्छा, तो ये था हमारा लेफ्ट आउटर जॉइन. अब राइट आउटर जॉइन क्या होगा? इससे अगर हम रिवर्स कर दें, it will bring all of the records from the right table, even if it doesn't have any match record in the left table. ठीक है, आपने डेफिनेशन स्वैप कर दी बस. आउटर जॉइन, लेफ्ट आउटर जॉइन will select all of the right outer join will select all of the records from the right table, even if it doesn't have any match in the left table. So it will select all of the records from the agent table if it even doesn't have any matched key in the customer table. अब अगर हम देखें कि 125 यहाँ मौजूद है, yes we have. 167 यहाँ मौजूद है, yes we have. 231, yes. 333, no we don't have. ठीक है जी. तो 333 के अगेंस्ट हमारे पास यहाँ पे कोई रिकॉर्ड ही नहीं है. तो अब क्या होगा? अब तमाम रिकॉर्ड्स किसके सेलेक्ट होंगे? एजेंट टेबल के. और इसके अगेंस्ट यहाँ क्या आएगा? यहाँ नल वैल्यूज आएंगे. ठीक है, चलते हैं देखते हैं इसको. A right outer join yields all of the rows in the agent table, including those that do not have matching values in the customer table. ठीक है जी. एजेंट की टेबल से तमाम रिकॉर्ड लेके आएगा,
इवन इफ दे डू नॉट हैव द मैच वैल्यूज इन द कस्टमर टेबल। ठीक है जी। और इसके अब जब ये होगा तो क्या होगा, वी हैव वन रिकॉर्ड, ऑल ऑफ द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द एजेंट टेबल बट द corresponding record have no values there, so they are null, they are blank। ठीक है जी। दिस इज द लेफ्ट आउटर ज्वाइन, जिसमें लेफ्ट टेबल से तमाम रिकॉर्ड लेके आता है और इवन इफ दे डू नॉट हैव एनी मैच इन द राइट टेबल। राइट आउटर ज्वाइन में इट प्रोड्यूस ऑल ऑफ द रिकॉर्ड फ्रॉम द राइट टेबल इवन दे डू नॉट हैव एनी मैच इन द लेफ्ट टेबल। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक और टाइप होती है ज्वाइन की, जिसको हम कहते हैं फुल आउटर ज्वाइन। एक था लेफ्ट आउटर ज्वाइन, एक था राइट आउटर ज्वाइन। फुल आउटर ज्वाइन क्या करेगा, आप लेफ्ट आउटर ज्वाइन और राइट आउटर ज्वाइन के रिजल्ट्स को मिक्स कर दें, कंबाइन कर दें, इट विल बिकम फुल आउटर ज्वाइन। फुल आउटर ज्वाइन विल ब्रिंग ऑल ऑफ द रिकॉर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टेबल एज वेल एज ऑल ऑफ द रिकॉर्ड फ्रॉम द राइट टेबल इवन इफ दे डू नॉट हैव एनी मैच। ठीक है जी। तो इस केस में क्या होगा, लेफ्ट आउटर ज्वाइन तमाम ये रिकॉर्ड्स भी लेके आएगा और तमाम ये रिकॉर्ड भी लेके आएगा। ठीक है, तो उसका रिजल्ट क्या बनेगा, रिजल्ट सेट इन रिकॉर्ड में से जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हैं वो ख़त्म कर दें आप, यहाँ से लेके यहाँ तक के रिकॉर्ड्स हमारे पास सेम है दोनों टेबल्स के अंदर, यहाँ से लेके यहाँ तक के। ठीक है, तो ये एक दफ़ा आएंगे, एक्स्ट्रा रो उसमें एक ये है, ये आ जाएगी, इसमें एक एक्स्ट्रा रो ये है, ये आ जाएगी। ठीक, तो जो हमारा रिजल्ट सेट आएगा उसमें यहाँ तक तमाम रॉ सेम होंगी। ठीक है, एक रॉ यहाँ से एडिशन आएगी, एक रॉ यहाँ से एडिशन आएगी। ठीक है, तो जो फुल आउटर ज्वाइन है इट कंबाइंस द रिजल्ट्स ऑफ द राइट आउटर ज्वाइन एंड द लेफ्ट आउटर ज्वाइन। ठीक है जी। तो ये हमने ज्वाइंस पढ़ लिए, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन। अच्छा, अब इनको ये एक्चुअली इसकी टाइप्स तो मैं नहीं कहूँगा इनको, लेफ्ट आउटर इक्वी ज्वाइन। अब लेफ्ट आउटर इक्वी ज्वाइन क्या होगा, अगर लेफ्ट आउटर ज्वाइन में आप दो टेबल्स को ज्वाइन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल टू साइन, तो ये इक्वी ज्वाइन बन जाएगा। अगर आप ग्रेटर दैन लेस दैन की बेसिस पे ज्वाइन कर रहे हैं तो ये आपका जो है वो थीटा ज्वाइन बन जाएगा। अगर आप इसको नेचुरल ज्वाइन की बेस पर ज्वाइन कर रहे हैं तो ये आपका नेचुरल ज्वाइन बन जाएगा। ठीक है जी। द थिंग इज जो आपको याद रखनी है वो आपने याद रखना है, व्हाट इज द आउटर ज्वाइन एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ आउटर ज्वाइन, व्हाट इज द लेफ्ट आउटर ज्वाइन, व्हाट इज द राइट आउटर ज्वाइन एंड व्हाट इज द फुल आउटर ज्वाइन। ठीक है जी, ये तीन चीज़ें। अच्छा, अगर अब हम क्यूरीज पे आके कुछ क्यूरीज लिखने की कोशिश करें लेफ्ट आउटर ज्वाइन और राइट आउटर ज्वाइन, पहले अगर हम अपने टेबल्स देख लें कि हम किस टेबल पे ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। हम अगर अपने एम्प्लॉय टेबल देखें, एम्प्लॉय टेबल, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय, एक्सक्यूज मी, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय में हमारे पास ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। इसमें अगर हम डिपार्टमेंट नंबर देखें कि कोई अनयूज डिपार्टमेंट नंबर है, we have 10, 20 and 30। अच्छा, select static from department। ठीक है जी, select static from department। अब इसमें अगर आप देखें we have 4 departments, बट यहाँ पे सिर्फ 3 डिपार्टमेंट यूज़ हुए, तो हम यहाँ पे एक ज्वाइन यूज़ कर सकते हैं। अब अगर मुझे दोनों टेबल्स के रिकॉर्ड्स चाहिए, ठीक है, तो अब आप बताएं कि मैं कौन सा ज्वाइन यूज़ करूँगा। जस्ट थिंक फॉर अ सेकेंड, यस यू विल गेट इट। वी नीड ऑल ऑफ द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द राइट टेबल दैट इवन डू नॉट हैव अ मैचिंग वैल्यू इन द लेफ्ट टेबल। ठीक है, तो हम यहाँ कौन सा ज्वाइन यूज़ कर रहे होंगे, राइट आउटर ज्वाइन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी, we will use right outer join। we need all the values from the right table even if they do not have any match in the left table। ठीक है जी। अच्छा, तो इसकी क्यू लिखने की कोशिश करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सेलेक्ट, I would like to select all the records। select static from employee E department D। ठीक है जी। Select all the record from the employee and the department, or we can write first we would like to use the keyword join, outer join, left join or and right join। Okay, then we will come to this this form of the query। Select static from employee E, right join department D। ठीक है, जैसे हमने पहले किया था कौन से ज्वाइन के लिए, इनर ज्वाइन के लिए। ठीक है, ये वही सेंटेंस हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय ई, राइट ज्वाइन डिपार्टमेंट डी
where and no, we do not use where, we use on e dot department number इक्वल्स टू डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है जी, तो ये पहली वाली क्यूरी का सिंटैक्स जो हमने डिस्कस किया था इनर के केस में। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय ई इनर जॉइन डिपार्टमेंट डी ऑन दिस एंड दिस। ठीक है जी, तो अब वही चीज़ हम किस में यूज़ कर रहे हैं, हम उसकी जगह यूज़ कर रहे हैं राइट जॉइन। ठीक है, इसी तरह से आप लेफ्ट जॉइन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो डिपार्टमेंट, आई थिंक देयर इज सम स्पेलिंग मिस्टेक, डिपार्टमेंट। ठीक है जी, ओके। नाउ हाउ मेनी रिकॉर्ड्स डू वी हैव? वी हैव 15 रिकॉर्ड्स। ठीक है जी, वी हैव ऑल ऑफ द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट टेबल। लेफ्ट टेबल से हमारे पास तमाम रिकॉर्ड आए, इवन इफ वी डू नॉट हैव एनी मैच इन द राइट टेबल। ठीक है जी, लेफ्ट टेबल से तमाम रिकॉर्ड लेके आ गया ये। ठीक है, और 40 देख रहे हैं आप, 40 भी आ गया, इवन इफ इट डू नॉट हैव एंड मैच इन द राइट टेबल, लेफ्ट टेबल। ठीक है, तो राइट आउट जाने के केस में राइट टेबल के तमाम रिकॉर्ड्स आए और लेफ्ट टेबल में अगर उनका कोई मैच नहीं भी है तो भी वो लेकर आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे अब उसके केस में क्या हो, नल वैल्यू आएगी। ठीक है, अगर एक 40 है डिपार्टमेंट और उसके अगेंस्ट कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे नल वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये हमने एग्जाम्पल देख ली राइट जॉइन की। ठीक है जी, अच्छा अब हम देख लेते हैं लेफ्ट जॉइन। ओके अच्छा, अगर हम एक और काम भी कर सकते हैं, हम इसी को लेफ्ट जॉइन बना लें। अगर इसी एग्जाम्पल किस तरह से, अगर हम अपने टेबल स्वैप कर दें, हम जो हमारा टेबल है, फॉर एग्जांपल जो हमारा टेबल है एम्प्लॉय का, इसको हम ले जाएं राइट साइड पे, और जो हमारा डिपार्टमेंट का टेबल है उसको हम ले जाएं लेफ्ट साइड पे, और हम कहें हम इसको इससे ज्वाइन करें। ठीक है जी, हम इसको बना दें अपना लेफ्ट टेबल और इसको बना दें अपना राइट टेबल। तो अब एंड वी वांट ऑल ऑफ द रिकॉर्ड्स, इसका मतलब क्या है, वी वांट ऑल ऑफ द रिकॉर्ड फ्रॉम दिस टेबल दैट डू नॉट हैव एनी मैच इन दिस टेबल। ठीक है, तो हम यहीं पे इसी चीज़ को मॉडिफाई करके हम लेफ्ट जॉइन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम अपना लेफ्ट टेबल बना दें इसको और राइट टेबल बना दें इसको, अब क्या हो जाएगा, वी नीड ऑल ऑफ द रिकॉर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टेबल दैट डू नॉट हैव एनी मैच इन द राइट टेबल। ठीक है, तो अपने क्यूरी में हमने क्या चेंज करना है, सिर्फ पोजीशन चेंज करनी है। एम्प्लॉय ई, यहाँ पे एम्प्लॉय नहीं आएगा, यहाँ आएगा डिपार्टमेंट। ठीक है जी, हमारा राइट टेबल कौन सा हो गया, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट डी। ज्वाइन हमारा अब चेंज हो जाएगा लेफ्ट ज्वाइन, सॉरी हमारा लेफ्ट टेबल हो गया डिपार्टमेंट का। ठीक है, और ज्वाइन हमारा कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट, बिकॉज वी वांट ऑल ऑफ द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट टेबल। ठीक है जी, 40 इसमें है, इसमें नहीं है, वी वांट ऑल ऑफ द रिकॉर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टेबल। तो हमारा लेफ्ट टेबल कौन सा हो गया, डिपार्टमेंट, और अब हम इसको चेंज कर देंगे एम्प्लॉय ई। ठीक है जी, ऑन ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर, नाउ दिस वुड बी डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर, ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, रन करते हैं इसको। ठीक है जी, अब आपने देखा कि हमने क्या किया, वी brought all of the record from the left table which is the department table and all of the record from the right table even if they do not have any match। अब क्या हो, तमाम records left table से आ गए और right table में अगर कोई record नहीं है तो वो भी आ गए और उनकी जगह null values आ गए। ठीक है, तो हमने दो ही क्यूरीज को मॉडिफाई करके लेफ्ट आउटर जॉइन राइट आउटर जॉइन यूज़ कर लिया। ठीक है जी, तो अगर आपने लेफ्ट आउटर जॉइन यूज़ करना है तो आपका लेफ्ट टेबल यहाँ पे होगा, राइट टेबल यहाँ पे होगा। ठीक है, अगर आप राइट आउटर जॉइन यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है, तो अपनी जो टेबल की पोजीशन है वो भी स्वाइप करके लेफ्ट आउटर जॉइन को राइट आउटर जॉइन में चेंज कर सकते हैं। तो आपका जो ये टेबल है वो हमेशा आपका लेफ्ट टेबल होता है, ये आपका राइट टेबल होता है। ठीक है जी ओके, अच्छा अब हम अगर किसी और टेबल के ऊपर ही काम करना चाहें, लेफ्ट आउटर जॉइन हमने यूज़ तो कर लिया, इसी को मॉडिफाई करके टेबल्स की पोजीशन चेंज करके अगर हम कोई और टेबल देखें, लेट्स जस्ट write the keyword to show the tables, show tables। actually we have project, we have okay
project participation, and we also have project. Okay, select static from project. Okay, select static from project participation. So yes, we can use some joins here. ठीक है जी, किस तरह से यहाँ आप कुछ एम्प्लॉय नंबर देख रहे हैं, ठीक है जी, ये एम्प्लॉय नंबर है, ये कुछ प्रोजेक्ट नंबर है, ठीक है। तो हम प्रोजेक्ट नंबर को भी इसके साथ ज्वाइन कर सकते हैं और हम एम्प्लॉय के टेबल को भी इसके साथ ज्वाइन कर सकते हैं। एम्प्लॉय नंबर मौजूद है यहाँ पे, एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ पे सारे, ठीक है। हम ये करते हैं कि हम लेफ्ट ज्वाइन करते हैं, एम्प्लॉय टेबल में वो सारे एम्प्लॉयज़ हैं। हमने ये देखना है कि एम्प्लॉय टेबल में से तमाम रिकॉर्ड हम लेके आ जाएं, इवन इफ दे डू नॉट हैव एनी मैच इन दिस टेबल, ठीक है जी। हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा एम्प्लॉय है जिसको कोई प्रोजेक्ट की असाइन नहीं है, ठीक है। तो हम सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट ऑल ऑफ द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल एंड अच्छा, अब हमने कौन सा ज्वाइन करना है, लेफ्ट टेबल से अवर एम्प्लॉय टेबल, ठीक है जी। हमारा लेफ्ट टेबल है एम्प्लॉय टेबल और हमारा राइट टेबल कौन सा है, प्रोजेक्ट पार्टिसिपेशन। तो लेफ्ट ज्वाइन विच टेबल, प्रोजेक्ट पार्टिसिपेशन, प्रोजेक्ट पार्टिसिपेशन, इसको मैं कहता हूँ पी, ठीक है जी। अच्छा, ऑन कौन सी कॉमन की है दरमियान, एम्प्लॉय नंबर, सो ई डॉट एम्प्लॉय नंबर इक्वल्स टू पी डॉट एम्प्लॉय नंबर, ठीक है जी। It will bring all of the records from the employee table even if they do not have any match in this project participation table. इससे हमें यह पता चल जाएगा कि कौन सा ऐसा एम्प्लॉय जिसको कोई प्रोजेक्ट असाइन नहीं है। सो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द क्वेरी, आई थिंक। select static from, ठीक है जी, ओके। तो एम्प्लॉय टेबल से तमाम रिकॉर्ड्स हमारे पास ये लेके आ गया। अब एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स, एम्प्लॉय टेबल के तमाम रिकॉर्ड लेके आ गया। हम ढूंढते हैं नल वैल्यू कहाँ पे आ रही है, नल वैल्यू यहाँ पे आ रही है, ठीक है जी। ये नल वैल्यू आ रही है और ये किसकी आ रही है, जनाब प्रेसिडेंट की, ठीक है जी। जो प्रेसिडेंट साहब हैं उनको कोई प्रोजेक्ट असाइन नहीं है क्योंकि वो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। ओके, सो वी हैव ब्रॉट ऑल ऑफ द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट टेबल using the left outer join, all of the record from the left table even if they do not have any match in the right table. राइट टेबल में प्रेसिडेंट साहब के अगेंस्ट कोई भी रिकॉर्ड एंट्री नहीं थी कि कौन सा प्रोजेक्ट असाइंड है, ठीक है जी। तो बट जो लेफ्ट आउटर ज्वाइन है वो तमाम रिकॉर्ड लेके आ गया हमारे लिए, लेफ्ट टेबल में से भी राइट टेबल में से भी, ठीक है जी। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी जो आपको समझानी थी वो ज्वाइंस के हवाले से। सो now let's move to some other examples and the lab task.